पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नरेष्ट्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आगे कहीं जाने को नहीं मिल रहा है। क्षगं कान्तिरापा कान्तिरोषधया कान्तिरे धीयतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं नापतु व्यातु कान्तिर्भवतु। शान्ति 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 भवेतु। गर्मी होने लगी। हम पकड़ाएंगे कैमरा दूसरे को, हम खिंचाएंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारे बीच प्रबंधक महोदय यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है पहले से ही, आज यहाँ पे फेयरवेल क्लास 10 और 12 दोनों को हम लोग दे रहे हैं, फेयरवेल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे तो एक तरीके से कह सकते हैं आपका। कारण ये है कि आज से आपकी स्कूलिंग खत्म हो रही है, एक तरीके से कहा जाए। आज के बाद आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में सीधा आप ग्रेजुएशन करेंगे, स्कूल से आप कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी चीजें एकदम से परफेक्ट है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट कराते हैं। बहुत ज्यादा
भारत रत्न का
भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। We had studied and played for so many years. So today I would say that this day is not the time for tears. Today we all presented here to remember the time we spent together and celebrate all the fun we have had in our MGEC. Are you ready for the celebration? Yes. So we all together celebrate the occasion. We all pray for our seniors for their bright future. And yes, goodbye process can be emotional, but the party is a perfect opportunity to have a grace with the friends and we planned a special goodbye. My dear friends, we all the juniors are feeling very sad that how difficult it is to bid farewell to our seniors, but it is the law of nature that everyone has to go. Stage is set for making beautiful memories. Let's give a round of applause to our seniors. Let us begin. Thus, remembering our creator, I would like to call our English teacher. Please give a big clap for Ankit sir. Good afternoon, all of you. Respected manager, sir, principal, teaching staff and non-teaching staff, and my dear students. As you all know, we are gathered here for blessing ceremony of class 10 and farewell of class 12. So, class 12 students, you are now moving into another phase of your life. You have to face many challenges regarding this. So, you have to focus on your studies and goals. Today, I will tell you 5 class 10th students are also present here. I have taught you 7 C's of communication in IT. Have you learned it? You have learned about 7 C's of communication. Just like that, I will tell you 5 C's to get success. You have to follow, and 5 C's you have to avoid. So you have to follow first 5 C's. First is commitment. You have to commitment about your goal and work. Second, you have confidence. You have to work constantly towards your goal. And third one is consistency. You have worked consistently to achieve your goals. And fourth one is curiosity. You have to be curious about your work to learn new things. And last one, fifth one, you have confidence. So you have self-confidence, self-belief in yourself. So these 5 things, these 5 C's you have to follow. And now I will tell you to avoid 5 C's. Number 1, criticize. Never criticize anyone. कभी किसी की आलोचना ना करे. Number 2, never cry. कभी रोए ना. कुछ भी बैड हो जाए, जो भी हो जाए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए. Third C, you have to avoid is cry. Never cry. And next, the last, third one, you have never compare. Next is never compare to anyone. My marks is less, your marks is greater. Never compare. And last C is you have not curse anyone. अगर तुम्हारे साथ बुरा हो जाए कि दूसरे को दोषी ना बनाए कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर दे. कभी किसी को कर्ज ना करें. एंड नेवर, लास्ट 5, यू हैव टू अवॉइड complain. Never complain about your work. Don't blame anyone. And at last, I will tell you an example of value of time and presence of mind. एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, एक ऐसा वाक्य बताओ, एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिससे जो सुखी हैं वो दुखी हो जाएं और जो दुखी हैं वो सुखी हो जाएं. तो अर्जुन ने जवाब दिया, ये समय गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली. एट लास्ट
I wish you best of luck for your upcoming board examination. Thank you. Now I am going to invite our Kanchan ma'am. It is a privilege to extend a warm welcome to you today as we together appreciate your dedication and your guidance. So please welcome on the stage Kanchan ma'am. Please give a big clap. आदरणीय प्रबंधक महोदय, हमारे प्रधानाचार्य जी तथा साथी अध्यापक, आप सभी का इस आशीर्वाद समारोह और विदाई समारोह में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मेरे सारे प्यारे नौनिहालों बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। जैसे कि ये विदाई समारोह में हम उपस्थित हुए हैं, तो विदाई समारोह का मतलब है कि आप एक लक्ष्य को पूरा करके दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अग्रसर हो रहे हैं। ये नहीं है कि ये किसी चीज़ का समापन है, बल्कि एक नई दिशा की तरफ, एक नए लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर होंगे। जैसे आप यहाँ भी एग्ज़ाम आपका लेते आए हैं हमेशा, चाहे वो टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर हम टीचर आपकी योग्यता को जान रहे होते हैं, आपने कैसा स्मरण किया है, आपकी क्षमता क्या है, तो उस हिसाब से पेपर बनाए जाते थे कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। लेकिन अब जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें वहाँ आपको जानने वाले टीचर्स नहीं हैं। जो वो पेपर बनाए हैं वहाँ वो आपको नहीं जानते हैं, वो आपकी योग्यता को नहीं जानते हैं, बल्कि उस लेवल पर पेपर बनाया जाता है कि आप उस योग्य अब हो चुके हैं कि उन सवालों का आप उचित जवाब दे सकें और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सभी अध्यापक हमारे सामर्थ्य में जितना था, जितने भी ज्ञान हमारे पास थे, जितनी भी शक्तियाँ हमारे पास थी, हमने अपना 100% आपको देने का प्रयास किया। अब हमें आशा नहीं, बिल्कुल पूरी उम्मीद आपसे करते हैं या विश्वास करते हैं कि हमने जितना भी आपको दिया, अब आप कितना उसको ग्रहण कर पाए, ये हमें देखना है कि जितने परसेंटेज आप लाते हैं, यानी आपने हमें उतना ग्रहण किया। हम टीचरों के ज्ञान को आपने उतना अर्जित किया जितने आप परसेंटेज ले आते हैं। और इसी दिशा में, इस सीखने और सिखाने के क्रम में जो हमारा आपका 2 वर्षों 4 वर्षों या काफ़ी लंबा चला, जो भी चला हो, उस बीच में हम टीचर्स ने, केवल पर्सनली मैं खुद को नहीं कहूँगी, सारे टीचर्स ने कभी आपको मारा, कभी डांटा, कभी कोई दंड दिया और कभी प्यार से समझाने का भी कार्य किया। तो इसमें आपको अब अपने मन में कोई बातों को नहीं रखना है कि कोई टीचर्स ने आपको पर्सनली डांटा हो, बल्कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक माली होता है, वह पौधों को सुडौल बनाने के लिए उसको काटता भी है, समय समय पर छांटता भी है, तो ठीक उसी प्रकार से हम टीचर्स का भी वह प्यार ही होता है। चाहे उसको किसी भी दिशा में करके, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपको सुडौल बनाए, आपको अच्छा बनाए। एक अच्छे विद्यार्थी बनाने से पहले इस देश के सभ्य और अनुशासित नागरिक बनाने का प्रयास करें। तो हमारा सिर्फ यही उद्देश्य था हम सभी का कि आपको एक सभ्य और अनुशासित नागरिक बना सकें। अंत में मैं अपने 12th के बच्चों के लिए कुछ 2 लाइनें कहूँगी। साथ गुजरे जो पल भूला न देना, जाओ कुछ बनकर दुनिया को दिखा देना। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कोई तो पास रहकर भी याद नहीं आता, कोई तो पास रहकर भी याद नहीं आता, कुछ दूर जाकर भी भुलाई नहीं जाती। और अंत में मैं अपने सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ और साथ ही यह कामना करती हूँ कि आपका आने वाला समय सफलताओं से परिपूर्ण हो। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for motivating. Please give a big clap for our Hindi teacher, Kanchan ma'am. Let us now welcome the man who does not need any introduction and known among all of us for his wisdom and his knowledge, our Honorable Vice Principal Sir. I would like to request our Vice Principal Sir, please come on the stage and say a few words. Please give a big clap.
आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं हमारे समस्त साथी अध्यापकगण, सबसे पहले मैं अपने सभी क्लास 12 के उन बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो पूरे वर्ष हमारे साथ रहकर बहुत कुछ उन्होंने सीखा और सीखने के साथ साथ हमेशा यही कहा जाता है कि हमने सिखाया, लेकिन हमें बताना चाहेंगे कि हम लोग भी कई बार आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग बच्चे भले हैं, लेकिन आप लोग जीवन में बहुत कुछ सच में सिखा के जाते हैं। एक बार 12th के बच्चों के लिए आप लोग तालियां बजाइए, 11th और 9th वाले। आदरणीय प्रबंधक महोदय हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रबंधक महोदय के सानिध्य में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ऐसी आशा करेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें इसी तरह चमकते रहें और कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहें। और आप लोग कोई शक नहीं, जहाँ रहेंगे चमकते रहेंगे और बेहतर करेंगे, इसमें कोई शक हमें नहीं है और शायद आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। और हमेशा किसी के ऊपर निर्भर होकर कभी आप काम करते हैं तो आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते बेटा। हमेशा आपको मैं एक ही चीज़ सिखाना चाहूँगा कि आप आज इस हमारी लास्ट स्पीच के साथ आपकी लाइफ का शायद हमारा लास्ट लेक्चर कह लो, वही बोरिंग लेक्चर जो क्लासेस में होता था उसका लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर आज मैं आपको एक सिखाना चाहूँगा कि लाइफ में आप जहाँ रहना, जो करना अपने दम पे करना, किसी पे डिपेंड होके मत करना। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं हमेशा आप लोगों को हमेशा क्लास में भी ये बताता रहा हूँ कि जब तक आप हम पर या किसी पर आश्रित हैं तब तक आप अपने जीवन का उस सबसे बेहतर काम नहीं कर सकते जो एक्चुअली आप कर सकते हैं। तो आश्रित होने के साथ साथ आपने जो भी सीखा, जो भी यहाँ से लिया, आगे आने वाले बच्चों को बताइए और आशा है कि आप संस्था से खुश तो होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी टीचर ने आपको व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ डांटा है, कहा है या आप कहीं भी व्यक्तिगत रूप से हर्ट हुए हैं किसी बात पर, तो आज फेयरवेल के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप उसको भूल जाओ। आप जिस भी बात पर हर्ट हुए हैं, जहाँ भी हर्ट हुए हैं, जो भी है आपका, उसको भूलो। और साथ आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि किसी टीचर ने आपसे द्वेष बस आपको डांटा है या इस वजह से डांटा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि जब तक किसी पत्थर पर छेनी और हथौड़ी का वार नहीं होता वो पत्थर मूर्ति नहीं बन सकता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार दो पत्थर आपस में बात कर रहे थे। कभी आपने मंदिर में देखा हो तो मूर्ति के अलावा मंदिर के बाहर एक अलग से छोटा पत्थर रखा होता है जिससे लोग मन्नतें पूरी करने के लिए नारियल फोड़ के जाते हैं। तो जब मूर्तिकार ने उस पत्थर को बनाना शुरू किया, नारियल जिस पर फोड़ा जा रहा था, तो उस पत्थर के अंतरात्मा से उसका दर्द निकल रहा था। पत्थर बार बार कह रहा था कि आप गलत कर रहे हैं, आपने जो भी किया, जितनी छेनी, जितनी हथौड़ी आपने हम पे मारा है, आपने गलत किया है। उसके बाद मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, फिर दूसरा पत्थर सेलेक्ट करता है और दूसरे पत्थर पे काम करना शुरू करता है और बहुत ही आकर्षक एक भव्य मूर्ति बनाता है जो किसी मंदिर में रखी जाती है। तो जब मंदिर में मूर्ति रखी जाती है और उसके बाद फिर उस मूर्ति की लोग पूजा करते हैं और वही साथी पत्थर जो पहले दर्द को नहीं सह पाया था वो बाहर रखा हुआ था। तो अब मूर्ति वाला पत्थर और साथ वाला पत्थर आपस में बात करता है कि तुम तो भाई मजे मजे से पकवान खा रहे हो, अच्छे अच्छे तुम्हारी पूजा हो रही है, रोज लोग तुम्हें हार पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और हमारे साथ क्या हो रहा है। तब जो दूसरा वाला पत्थर था वो बताता है कि काश अगर उस दिन मैंने भी वो छेनी और हथौड़ी की मार खा ली होती तो आज जहाँ तुम बैठे हो वहाँ मैं होता। और ये हकीकत है, अगर टीचर्स आपको बोलना छोड़ दें, डांटना छोड़ दें, तो आप
वाकई उसी पत्थर के बराबर बचोगी जिस पत्थर पे वो नारियल फोड़ा जा रहा था। सोचिए उस पत्थर की वेदना क्या रही होगी जिस पे नारियल फोड़ा जा रहा है। इसलिए बच्चा, जो भी टीचर्स आपको मारते हैं, जो भी डांटते हैं, उनका स्नेह होने के साथ साथ उनका ये उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से उन्हें प्राउड फील हो, अच्छा लगे कि नहीं, आपने जीवन में हमारे गाइडेंस में रह के कुछ बहुत अच्छा काम किया है। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय प्रबंधक महोदय का जो स्पीच था उसमें उन्होंने एक लाइन कोट की कि माँ बाप को तो आप कुछ ना कुछ देते हैं, हो सकता है बन जाने के बाद, लेकिन टीचर्स को आप क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें गर्व महसूस होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे आज IAS हैं, IPS हैं, और ये वास्तव में टीचर्स ही हैं जो आपके ऊपर एक गर्व कर सकते हैं कि हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस जगह पर है। क्लास में भी आपने सुना होगा, मैं बराबर बताता रहता हूँ, एक बच्चे को मैंने पढ़ाया था वो आज ये कर रहा है, एक बच्चे को पढ़ाया था वो आज CA इंटर का रिजल्ट निकला और CA बन गया, CA इंटर वो पास हुआ है। CA तो फिलहाल अभी हमारा पढ़ाया कोई नहीं बना है, तो इंटर का रिजल्ट निकला और वो बच्चा इंटर पास हुआ है, वो बच्चा फाउंडेशन पास हुआ है। मैं बराबर क्लास में आप लोगों से कोट करता था ये बातें। और जो बच्चा पास हुआ है, यकीन मानो उसकी होने वाली इनकम का 1 भी % मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे उस स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा रहा था उस टाइम वहाँ पे केवल सैलरी मिलना था और वही सैलरी मिल रही थी। लेकिन आज मुझे वो ऑनर फील होता है उस बच्चे की उस सक्सेस को देख के, जो ऑनर शायद कहीं और नहीं फील हो सकता। ये प्रोफेशन मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि जो ऑनर इसमें आपको बाद में मिलता है, बहुत ही बड़ी बात है। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि उस ऑनर को आप लोग महसूस करने का अवसर हमें अवश्य देंगे और आगे अपने जीवन में बहुत मेहनत करके कुछ अच्छा अचीव करेंगे। और फिर से एक बार अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं आपको, आप सभी बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बोर्ड एग्जाम में आप लोग फोड़ के आओ, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद आपको। Thank you so much, sir, for such a motivating line. Students are the stones and the teachers is a jeweler who makes the student diamond. Now I want to invite Ashwin sir on the stage. Please give a big clap for Ashwin sir. मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। समय का अभाव इसलिए जो है हम अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आप जहाँ भी रहें हंसते खेलते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। Thank you, sir. So for next, I want to invite Neetu ma'am for say some line. Please welcome on the stage Neetu ma'am. Please give a big clap for her. आदरणीय प्रबंधक सर, साथी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, समय का अभाव होने के कारण हम बहुत कुछ आपके सामने समक्ष नहीं कह रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा, कक्षा 10 के बच्चों के लिए यह विदाई समारोह नहीं है, आशीर्वाद समारोह, और कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए विदाई समारोह और हम लोगों के शुभ आशीर्वाद। हम सभी आप लोगों को शुभ आशीर्वाद के साथ और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धरती का प्यार पले, बल खाती बेले, मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले,
जैसी है सुबह ऐसे ही शाम ढली। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, दरिया का पानी नदिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। धन्यवाद। Oh man, that was really an incredible performance. You really rocked with your song. Now I want to invite on the stage Ayush Raj, who are going to swell our heart with their sharing. So please give a big clap for Ayush Raj. My name is Ayush Raj, class 9. कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी खूब नजर आते हैं। कि कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी खूब नजर आते हैं। मिलते तो हैं पल भर के लिए, मगर दिल में हमेशा के लिए उतर जाते हैं। हर पल में तेरी कमी तो रहेगी, आंखों में कुछ नमी तो रहेगी। हर पल में तेरी कमी तो रहेगी, आंखों में कुछ नमी तो रहेगी। जिंदगी को हम कितना भी संवारेंगे, हमेशा आप जैसे दोस्तों की कमी तो रहेगी। आपसे पहले भी कई आए तो कई आपके बाद आएंगे। आपसे पहले भी कई आए तो कई आपके बाद आएंगे। पर सच बोलते हैं खुदा की कसम, हम सबसे ज्यादा आपको याद करेंगे। एक कॉमेडी है। खाते हैं कसम आपको खोने नहीं देंगे, आप हो जाओ हमसे जुदा ऐसा हम होने नहीं देंगे। खाते हैं कसम आपको हम खोने नहीं देंगे, आप हो जाओ हमसे जुदा ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपको भिजवा देंगे कीमती तोहफा, कीमती मच्छरों का, जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। थैंक यू। Thank you, Ayush Raj. Again, please give a big clap for Ayush Raj. Dear Deepak sir, it is a privilege to extend a warm welcome to you today. We together to appreciate your dedication and guidance. So please give a big clap for Deepak sir. Dear students, डियर स्टूडेंट्स, आप सबके उज्जवल भविष्य की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप जिंदगी में जहां भी रहें, हमेशा जो है अच्छा कार्य करते रहें, आपका जीवन जो है सुखमय हो, ठीक है। और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है, ठीक है। और वो बच्चे जो ट्रांसपोर्ट से जाते हैं वो चले जाए, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट से जाते हैं ऐसे बच्चे चले जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप सब ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तो आप लोगों को अपने जीवन में कुछ करना है, और करने के लिए सबसे जरूरी चीज है डेडिकेशन होना चाहिए, और कार्य के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि बुलंदी शर्मसार हो जाए, और उठे एक नजर जो तेरी तो जमाना निहाल हो जाए, ठीक है। और आप सब जो है
मेरी तरफ से हमेशा जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं, चाहे जहां जीवन में रहे आप लोगों की याद तो आती रहेगी। और आप लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रकृति का नियम है। अभी सर ने बताया कि आप स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, आपके जो है हायर एजुकेशन खत्म कर आप जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। तो जीवन की जो है मंगलमय शुभकामनाओं के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः मां सर्वे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी सुखी हो, सभी जो है निरोगी हो और सबका जो है कल्याण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय कम है। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for motivating us. टूट सा रहा है। कभी सोची नहीं थी इन गधे शकल जैसे दोस्तों को इतने प्यार से गले लगाऊंगी। इतना कुछ सिखा गया ये स्कूल हमें।
शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। ऐसी यादें बना ली हमारे कमीने दोस्तों ने, सब इनकी अलविदा कहना आसान नहीं होगा। थैंक यू। Please give a huge round of applause for Anshima. Now hold your breath because we have next performance of song by Palak Tripathi. Please welcome on the stage Palak Tripathi. Please give a big clap for her. Hello everyone, I am Palak Tripathi from class 12. I am going to sing a song. तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तुझे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तुझे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी, चलो आज चलते हैं हम, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रही है कदम, फिर मुलाकात होगी कभी, दुखाओं में दिल जाते जाते तेरा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपाओ मैं हंस के अपने आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं, जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी, सितारों की इस भीड़ को गौर से एक आखिरी बार तुम देख लो, ये जो दो अलग से है बैठे हुए, ये तुम हो ये मैं हूँ नहीं मान लो, ये दिन में नहीं नजर आएंगे, मगर कल को जब रात होगी कभी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी, तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तुझे, तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तुझे, दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे, जो बाकी है वो बात होगी कभी, चलो
कुछ शायरी कहना चाहती हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में था वरना, मिलना हमारी तकदीर में था वरना, इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक से नहीं होती। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। थैंक यू। टेंथ वालों को साड़ी पहन कर आने के लिए कौन बोला था? नहीं करेंगे टेंथ वाले। टेंथ वालों को साड़ी नहीं अलाउ किया गया था। और कितने हैं टेंथ वाले? 1 2। Respected principal sir, teachers and all dear students. गाना तो नहीं गा सकते बट कुछ शब्द बोलेंगे ज़्यादा। आप खोल रहा था छुट्टी करवा रहे थे ऊपर से, फिर बच्चे कुछ ऊपर जा रहे हैं। देखिए आप कुछ ही दिनों के बाद एग्जाम है और हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम की तैयारी करिए और बढ़िया से नंबर लाइएगा। उसके बाद गाना गाते हैं। धन्यवाद। हमारी तरफ से सॉन्ग गाने जा रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर। आप लोग अगर सिद्धार्थ सर को बुलाते ज्यादा अच्छा होता। चलिए वैसे आप लोग काफी समय से कह रहे थे कि गाना गा दीजिए। एक शर्त है, मैं गाऊंगा और साथ में आप दोहराएंगे। क्लियर? हो गया भाई। फिल्म का नाम है प्रहार, इसमें जो कास्टिंग है नाना पाटेकर का और प्रेयर है। थक गई क्या? शुरू करें? वेरी गुड। गाने के बोल हैं हमारी मुट्ठी में आकाश सारा। नहीं, मैं गाऊंगा और आप दोहराएंगे। क्लियर? हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। आकाश सारा जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, कभी ना ढले जो वो ही सितारा, कि साजिश से पहचाने आकाश सारा।
बिना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचाने आकाश सारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। खुलेगी चमकेगा तारा, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है, सुलझाने उनको न आएगा कोई, समझना है उनको कि अपना कर्म है, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, खुद का पनपना उभरना है खुद को, अंधेरा मिटाए नन्हा शरारा, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। और सबने कहा था कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो ना, कभी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहां है, हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना है वहां है, जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हें ही रास्तों पे बनाना हमें है, जो भी साथ आए उन्हें साथ ले ले, अगर ना कोई आए तो अकेले ही चल ले, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। सैड सॉन्ग नहीं है, मैडम का कहना है सैड सॉन्ग सुना रहे हैं। आप सोचिए, सब कहते हैं कि हथेली पे जो रेखाएं हैं उसके हिसाब से आपकी किस्मत चलती है, दूसरों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। जो आपने सोचा है अगर आप उसे करने की इच्छा रखते हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई उसे खत्म कर सके। धन्यवाद। जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसे चलती है तू, मैं जैसे उड़ता हूँ, कौन तुझे क्यों प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ।
तो कुछ नया सीख जाए, हमारे पास और भी बहुत काम है, मेरे को कुछ जल्दी करनी चाहिए। तैयार की खींच खींच के निशाने हो मैं मारती, तैयार की खींच खींच के निशाने हो मैं मारती। खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरा यार बरगा, पूरी ऊपर तंगी रख तुम्हारे सोने जब कभी नहीं मेरा यार बरगा, पूरी ऊपर तंगी रख जाने कभी मासी जाने कभी मासी आजा मेरे नाल तुम्हारे नच सोने, मेरे नाल तुम्हारे नच सोने, मैनू फील करावा मैं चला पाईदा, अपने सीने विच ठा बजदा तेरा नचना है कि तलवार मारदा, अपने सीने विच ठा बजदा तेरा नचना है कि तलवार मारदा, यार पूरी तंगी रखदा मेरा नचना है। Thank you, Aditi, for such a wonderful performance. Good afternoon, my name is Priyanka. I read in class 9. Today I am getting to hear Kerala. I am singing song called Kerala. So we start. देती है विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। देती है विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम ना भुलाना, कभी ना भुलाना, कभी हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, कभी हमें ना भुलाना। दीदी विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। जब से सुना है कि आप जा रहे हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं, आंखों से आंसू थमते नहीं हैं। तुम्हें याद आए जब भी हमारी, तुम्हें ये कसम है हमें ना भुलाना। दीदी है विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई विदा होने वालों सुन लो अर्ज हमारी, मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना। विदा होने वालों सुन लो अर्ज हमारी, मिले हम कहीं तो हमसे नजर ना चुराना, नजर ना चुराना। हमसे हुई हो गलती कोई तो आपको कसम है कि हमें माफ करना। देते हैं विदाई जाओ खुशी से, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, कभी हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, कभी हमें ना भुलाना। देते हैं विदाई जाओ